Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Gaia and it's really nice to have you here. Before we get into today's video, please do like, share and subscribe. Please do comment on all of my YouTube videos. Let me know about any suggestions that you have for the channel, for any topics you want me to discuss. I have linked all of my social media where I post daily content in the description box below. I also write essays and I post them on my Substack, and I have added my Substack down below as well. So please do have a look, and let's now get into the video. Today's topic is study abroad. And let me tell you why I'm qualified to talk about this, because although I have not been able to travel abroad for my studies because of personal reasons, I have gotten into every single university I ever applied to. I'm not kidding. I have added all of my screenshots and offer letters here for all of you to see. Now, I'm going to tell you how to choose and how to navigate the world of study abroad consultancies when you arrive at a decision कि हाँ मुझे बाहर जाना है. First of all, um, please don't be stupid and make your main source of information people. मुझे पता है कि दुनिया रेफरल्स पे चलती है, मुझे पता है दुनिया फीडबैक्स पे चलती है, लेकिन यहाँ फीडबैक बहुत डिफरेंट होता है. एंड रिलाइंग ऑन पीपल, ओ मुझे इसने ये कहा इसलिए मैं ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर रही हूँ, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट ने ये बोला इसलिए मैं ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ, ऐसा स्टूपिड बिहेवियर यहाँ नहीं चलेगा. You cannot be basing a decision that could possibly alter your life or change the course of your life forever based on one person who told you something regarding a university. You have to understand, and this is, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आप स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं तब people who are running study abroad agencies, a lot of them a lot of times get commission based on how many students are admitted in a university, so their salaries depend on it. You have to take into consideration that it's business and it's not wrong on their part. वो कुछ गलत नहीं कर रहे, it's a type of business and it's a form of business that they are doing. उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन you need to understand that you can't be stupid and blindly follow anyone who says कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है. ऐसा नहीं होता है. Please understand the importance of collecting data from all sources possible. यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करना, जिस एक टाइप का डेटा हुआ, लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस जानना. एंड बाय लोग आई डोंट मीन अरे मेरा फ्रेंड का भतीजा गया था, नहीं चलेगा. पीपल, यू हैव टू डायरेक्टली स्पीक टू पीपल. You have to speak to alumni or current students in universities in countries that you want to travel to. You have to directly speak to them and directly get to know their experience. अगर ऐसा हो कि आपको कोई ऐसा मिले जो ऑलरेडी वो कोर्स कर रहा है जो आप करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो गेट इन टच विद द अलमनाई एंड डायरेक्टली आस्क देम क्वेश्चंस कि हाय मैं ये यूनिवर्सिटी सर्च कर रही हूँ, मुझे यहाँ जाना है, एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू. प्लीज लेट मी नो a good time to have a chat about it, ये वो कुछ भी, but you have to reach out to them yourself. This is your life, this is your decision. You can't be lying around and thinking कि हाँ स्टडी अब्रॉड वाले जो बोलेंगे मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, उसमें खुद का दिमाग नहीं लगाना, ये सब नहीं चलेगा. अपना दिमाग लगाना सीखो, आप बहुत होशियार हो, अपना दिमाग लगाना सीखो, और इस सिचुएशन में अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी भी होता है. ठीक है, तो एक टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल इंटरेक्शंस जो आप करेंगे. दूसरा टाइप हो गया स्टडी अब्रॉड. ना स्टडी अब्रॉड का बेनिफिट ये होता है कि इन लोगों को पता है कौन सी कैटेगरी में आप आते हो फाइनेंशियली, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए होगी, आपको किस तरह के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक्सेप्ट आपको कर सकती है. ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये समझना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको स्टडी अब्रॉड की मदद लगेगी. सो यू हैव टू कंसल्ट देम इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेस. आपको ऑनलाइन भी कंसल्टेशन मिल जाता है तो आप करिए. बाय द वे, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड और एनी प्रमोशनल वीडियो, आई एम जस्ट talking about this because I want to. So that's the other set of data that you can collect information from is study abroad. The third one is the digital presence of the university. Thoroughly stalk the university's website and their social media. Understand
what kind of content they post, understand उनका standing क्या है, academic दुनिया में उनका standing क्या है. ऐसे मतलब it's like saying कि मैंने literature हार्वर्ड से पढ़ा है. But Howard is not known for literature. Howard is known for law. Howard is known for management. तो आपने लॉ या मैनेजमेंट हार्वर्ड से किया होता तो कुछ मतलब इट वुड हैव बीन ग्रेट. लेकिन आप वैसे लिटरेचर कर रहे तो मतलब it's not really great, right? You have to understand there are two types of fish. Academically, two types of fish होते हैं, big fish, small fish. और बीच में होता है medium fish. ठीक है, बिग फिश, स्मॉल फिश, मीडियम फिश. हमेशा बिग फिश में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. मे बी इट्स लाइक अ पब्लिक यूनिवर्सिटी दैट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन से 5,000 स्टूडेंट्स पर इनटेक. अगर ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें पर इनटेक अगर 2 इनटेक्स है किसी एकेडमिक ईयर में, तो एकेडमिक ईयर में नहीं, किसी ईयर में अगर 2 इनटेक्स यूनिवर्सिटी में है, तो यू डोंट वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी वेयर आपका competition is not only the domestic students, it's also the Indians and all the other immigrants and study abroad students that have come there with you. आपको ऐसा प्रोग्राम चुनना है ऐसी यूनिवर्सिटी में जो आपको फेवरेबल होगा. लाइक इफ यू वांट टू परस्यू इन समथिंग इन म्यूजिक, दिस कुड बी अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस. अगर आपको कुछ म्यूजिक में करना है, क्लासिकल म्यूजिक में फॉर एग्जांपल, आप जूलियट जाओगे या कर्टिस जाओगे? कर्टिस इज बेटर. कर्टिस इज नोन फॉर better teaching and better everything. Juilliard is a brand. तो आपको वो समझना, you need to understand and you need to navigate कि आपको किसी यूनिवर्सिटी को जाना है क्योंकि अरे भाई क्या मस्त ब्रांड है. अगर आप वो ब्रांड के हिसाब से जाओगे तो आपको ब्रांडिंग ज़्यादा मिलेगी लेकिन शायद नॉलेज उतना ना मिले और आपकी कंपटीशन भी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ तो सब चाहते हैं. या आपको एक्सेलेंस चाहिए जहाँ पे सब हैंड पिक्ड होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स भी हैंड पिक्ड होते हैं, लेकिन सीखने का, सिखाने का, एकेडमिक्स का दर्जा बहुत ऊंचा होता है. डू यू वांट दैट? आपको वो गेज करना पड़ता है, वो गेज करना चाहिए. And if you want to say go to a country, say you want to go to Paris, you want to study abroad in France, आपको मैनेजमेंट करना है पेरिस में. Do you want to go to Paris because that's how it's marketed? Understand that everything is driven by media and everything is driven by the PR and image of a place or a brand. Paris is also a brand क्योंकि उसका travel, Paris is known for travels, it's called the most romantic city in the world, वो उसका brand है. Do you want to go to a place because that's how it's branded and it's all bright and shiny and sparkly in your head? Or do you want to go there because you've actually gauged the opportunities that you will get once you're there? अपने दिमाग से ये चीज़ हटा लो कि भाई मैं यहाँ जाऊँगी या वहाँ जाऊँगा, बहुत सही होगी ज़िंदगी, XYZ होगा, ये करूँगा वो करूँगी. ऐसा नहीं होता है. जो आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो ज़रा निकालिए दिमाग से और ज़मीन पर आइए प्लीज़. डोंट लेट योर डिसीजन be hindered or be driven by a sparkly image that the world has marketed you about a place or a university. Of course, getting into any university is tough. Lekin it's not as tough as it looks. It's really, really not as tough as it looks. I've gotten into so many. And I've gotten into these universities solely on merit. Applications free थे, मैंने apply किया और मुझे मिल गई. I got a seat. कुछ offers conditional थे, मैंने IELTS दी, मेरा अच्छा बैंड आया बिना क्लास लगाए. And I almost got there but I couldn't go because of personal reasons. लेकिन don't, जो fancified versions होती है brands की, उनके पीछे मत भागो. अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ के लिए जो अच्छा ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज वो चूज करो. ओके. ऑल्सो एक चीज़ जो है जो समझना बहुत मतलब इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर पीपल. मैंने ये किया था, सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू इट. एक एक्सेल शीट बनाओ जिसमें यूनिवर्सिटी, उसका आपको कौन सा कोर्स करना है, वो आपको कोर्स क्यों करना है, ये सब इंक्लूडिंग उस
कोर्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, उसकी स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी कौन सी है, बर्सरीज के लिए अवेलेबल है क्या, ये सब रिसर्च करके एक एक्सेल शीट में डालिए एंड देन अरेंज द एक्सेल शीट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी इज़ द वन दैट यू वुड लाइक टू गेट इनटू द मोस्ट, लाइक भाई दिस इज़ माई ड्रीम यूनिवर्सिटी, इसमें मुझे जाना है, उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। उसके साथ ही साथ बिकॉज मनी इज़ नॉट अ जोक, पैसा कमाना और उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा रिस्क होता है और वो सबको अफोर्डेबल नहीं होता है। अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन स्कॉलरशिप्स, तो टू अंडरस्टैंड दैट, गेज दैट एंड टू बी एबल टू बैलेंस इट आउट, ऑल्सो मैंशन ऑल फाइनेंशियल एड ऑप्शंस। उसके साथ ही साथ जिस देश में और जिस सिटी में आप रहने वाले हैं उसका एक्चुअल, नॉट द वन ऑन वेबसाइट्स, रेडिट पे जाके एक्चुअली लोगों से पूछो कि हफ्ते भर का जो सामान होता है, सो हफ्ते भर का एक्सपेंस कितना होता है, गेट दैट रिटन, मेक नोट्स। हफ्ते भर का एक्सपेंस अगर आपको से इंग्लैंड जाना है, आई रियली डोंट नो वहाँ के एक्सपेंसेस कैसे हैं, लेकिन लेट्स से आपका हफ्ते भर का खर्चा लंदन में कुछ होगा 2000 यूरोस, 2000 पाउंड्स होगा शायद, अगर है तो लेट्स अज्यूम कि आपका महीने भर का सॉरी हफ्ते भर का खर्चा इन लंदन यूके इज 2000 पाउंड्स। आपने लोन लिया है और आपने यू हैव हैड टू टेक अ फैट लोन क्योंकि आपने फीस भी अपने लोन से ही भरी है। से यू आर इन सम XYZ यूनिवर्सिटी इन लंदन, तो आपने वो लोन भरा है, उससे पैसे वगैरह जाते हैं, फिर वो पैसे आपको मिलते भी है क्योंकि आपको you have to like get through the day and you have like travels, कम्यूट, खाना, ग्रोसरीज, ये सब होता है। आपका से पार्ट टाइम है और आप पार्ट टाइम करके कुछ 20 पाउंड्स कमा रहे हो हफ्ते के, तो हफ्ते के 20 पाउंड्स के हिसाब से अगर आप 4 घंटा काम करते हो, मुझे नहीं पता कितना है वहाँ पे, बट सेफ साइड लेट्स जस्ट अज्यूम इंस्टेड ऑफ 4 3, इफ यू वर्क फॉर 3 hours a day, so 3 2s are 6, so you make 60 pounds in a day, एंड उससे भी काट छाट के आपको आ गए 50, ऐसा पकड़ लेते 50 पाउंड आ गए, 50 पाउंड इंटू 7 वुड बी 3500। उसमें से आपके कितने रहते हैं? अगर आपका से अकोमोडेशन ही कुछ 1000 पाउंड रहेगा तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे और आप उससे कैसे अपनी जिंदगी निकाल पाओगे वहां पे हफ्ते भर के लिए? ये मैंने तो बहुत ज्यादा एस्टिमेशन बोल दिया है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि कैसा होता है, कितना होता है। ये भी कंसिडर करिए कि आपको वहां जाके स्टडी अब्रॉड के लिए जब आप जाएंगे तो आपको वहां जाके कितना काम करना पड़ सकता है अदर देन योर स्टडीज, क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि मैं वहां पढ़ने जा रही हूँ या मैं वहां काम करने जा रही हूँ। मुझे पढ़ना है और फिर काम करना है, और मुझे इस तरह का काम करना है कि मेरा जो लोन मैंने लिया है या फिर जो इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी और एनर्जेटिक और पर्सनल इन्वेस्टमेंट मेरी जो है वो मुझे ROI उसका अच्छा है। आपने से 60 लाख का लोन ले लिया और उसमें से आपने 40 लाख की फीस भर दी, और फिर आपको ROI जब आया, क्योंकि वहाँ पे जॉब का मार्केट बहुत खराब है, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, तो आपको जॉब नहीं मिला, तो उसका ROI क्या हुआ? आपको जॉब ही नहीं मिली, आपको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला ही नहीं। तो आप ये जो 40 लाख, आपने जो 60 लाख का लोन लिया है जिसमें आपने 40 लाख यूज कर दिए हैं, वो आप भरेंगे कैसे? फिर वो अगर इंडिया का आप जॉब करेंगे तो उसका करेंसी डिफरेंस कितना होगा, और फिर आपको कितना महीना तक वो टेन्योर में आपको पे करना पड़ेगा लोन। ये सब भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा। और प्लीज इसका लोड मत लीजिए कि ओ भाई इतना सब है कैसे करेंगे। हो जाएगा, हो सकता है, बहुत लोग कर लेते हैं, और बिकॉज I couldn't go for because of my reasons. Although I'm really happy that I didn't go because I'm really happy with where I am in my life. But please don't live under the false pretense कि भाई मेरे पास ये सब नहीं है तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, या फिर मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। So you want to study abroad just because you want to get out of the country for whatever reason you have, or you want to run away, and this is like mentally run away and this is your opportunity to get out of here.
आई डोंट वांट यू टू थिंक कि मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि इस सब इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन हैव द थिंग्स यू वांट, यू कैन एक्चुअली गेट देयर। जस्ट डू वेरी वेरी गुड रिसर्च। सारी जितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है उस उतनी स्कॉलरशिप्स को रिसर्च करो, उसको अप्लाई करो। कुछ कुछ बहुत फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती है, उसकी डेडलाइंस देखो, उनको अप्लाई करो। IELTS के लिए भी बहुत पहले से तैयारी करना स्टार्ट करो। SATs जो भी आप दे रहे हो, स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली। आई टेल यू व्हाट, it's never bad to be over prepared. Over prep helps all the time because you know everything all the time. So बहुत अच्छा रिसर्च करो, एक्सेल शीट में ये सब मेंशन करो, एंड देन अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस, अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कहाँ जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। ये सब आपको करना पड़ेगा और आप ये कर सकते हो। आप यहाँ तक आए हो, आपने वीडियो देखी है, आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब आप इसके बारे में सोच रहे हो और ये आपके लिए हो सकता है। दिस कैन हैपन फॉर यू। देयर आर पीपल in worse conditions with barely any internet connection, and they still find a way, and they manage, and they get out of the country, and they go to the university they want to go to, and they study there in whatever subjects they want to excel at. उनके लिए हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है. This can actually happen for you. Okay, please believe it. One more thing is कि understand that आपकी हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। आप वहाँ गए और आप अकेले रहे और आपको होम सिकनेस हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ गए और आप इंडिया के से तमिलनाडु, चेन्नई ये रीजन से हो, साउथ रीजन से हो, और यू आर नॉट एबल टू adjust to the cold environments in a foreign country like say Canada or Russia. You're not able to adjust to it because it's too damn cold. You can't compromise your health because you have already made a very big investment. So, if you're planning to go somewhere where you know it's going to be cold, where you need to understand how to train yourself to be able to take it all, train yourself from now. Build your immunity in a way, start working out, build your immunity in a way that you know कि वहाँ जाके हवा, जो बदलाव होगा हवा में, वो सब आपको अफेक्ट नहीं करेगा, बहुत कम अफेक्ट करेगा क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी ऐसी बिल्ड की है। सी, दुनिया में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। आई एम अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, सो यू हैव टू गो विद इट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हाथ पे हाथ रख के दुखियारे मत बैठो कि भाई मेरे लिए नहीं होगा, भाई अब मैं सिक हो जाता हूँ, मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। ये सब ना बकवास नहीं चाहिए। आपको जाना है या नहीं जाना है, यू कैन गो, यू कैन एक्चुअली हैव एवरीथिंग यू ड्रीम ऑफ, except that you have to accept that your dream is going to matter more than your comfort. Yeah, your comfort is going to matter more than your dream. Once you decide that, you're gonna know for sure कि आपको seriously ये करना है या नहीं करना है. And for the homesickness part of it, the easiest way to deal with it is to join Facebook groups and Reddit groups. वहाँ पे in any foreign, because Indians are everywhere, literally. तो in कोई भी कंट्री में आप जाओ ना, वहाँ पे किसी इंडियंस की कम्युनिटी होती ही है। तो आप वहाँ पे जाके उस स्टेट का क्लब ज्वाइन कर लो। पंजाब क्लब होगा, पंजाब कम्युनिटी ऑफ कनाडा, ब्रैम्पटन, कुछ भी, या फिर द सिख कम्युनिटी इन लंदन, या फिर सिंधी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटीज़ है। वहाँ पे ज्वाइन करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो और उनके मीटअप्स पे जाओ, ताकि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो ये जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, आपको अकेला ना लगे। जब आप जाओ तो लोगों से मिलो। यू आर गोइंग इन अ कम्प्लीटली अननोन प्लेस जहाँ आप कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। इट्स अ कम्प्लीटली फॉरेन प्लेस फॉर यू। तो do your best with all the resources that you have to not make it so rigid and unfamiliar anymore. You can change that. You can talk to people right now so that in the future when you go,
That person will maybe come to receive you at the airport, or when you go, you can go to the community meetups and they will hug you and they will welcome you. और फिर आप घर का खाना थोड़ा सा मिल सकता है. You'll have someone to rely on. आप अपनी बोली भाषा में उनसे बात कर सकते हो, जो हमेशा नहीं पॉसिबल होता है. All of this is possible. It is possible. And the most important thing to remember is to have an open mind. Regardless of what anybody says, have an open mind, not just about opportunities and possibilities, but also about all the different versions of people that can exist around you. Just because you have not seen something in your country doesn't mean it doesn't exist in another country. Don't go there and behave like an idiot and be like, oh, हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत हो गया. ये सब नहीं बोलना है. You are better than that. Don't go to university and then behave like an idiot. You are smart, you are intelligent, you are capable of creating the life that you want. And that comes with the responsibility of the kind of reactions and responses you have to things around you, including your internal environment. तो ना प्लीज अपना ख्याल रखिए और ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिकली इस डिसीजन के बारे में सोचिए. This is possible for you, and above all else, remember that you can have the life that you want. You can have the things you dream of, like extremely wild. You can have that. आपके लिए ये हो सकता है, आप ये कर सकते हो. अगर आपको हमेशा लोग बोले कि ओ भाई तू तो कितनी स्टूपिड है, तुम पागल हो, ये हो वो हो, आप नहीं जा सकते, आपसे नहीं होगा. अगर आपको लगता है कि आपसे ये होगा तो होगा. And you don't need to prove that to anybody, and you don't need to convince anyone about it either. यहाँ तक आप आए हो अपनी जिंदगी में, to some extent you have had to deal with it alone. Everyone has to deal with stuff alone, and so have you. You've also dealt with stuff alone. Just believe in yourself, have faith that if you want something bad enough, it's gonna happen for you. Have faith कि आप निकल पाओगे यहाँ से, आप जा पाओगे जहाँ आपको जाना है, आप वो एग्जैक्ट डिग्री ले पाओगे जो आप चाहते हो. आपको बर्सरी चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, आपको मिल जाएगी, कहीं से जुगाड़ हो जाएगा पैसे का. आपके लिए सब मुमकिन है. अगर आप अपने आप में ये विश्वास नहीं रखोगे ना, और जब लगता है ना कि भाई नहीं होगा, when you really can't believe in yourself, it's okay. Don't stop believing in the dream. You can be like, oh my god, I'm not sure I can do this. That's okay. Everyone has doubts, but don't ever be like, I'm not sure it'll happen for me. It will. It will, because the craziest, most amazing things happen to people who really, really believe in themselves. So, no matter what, don't stop believing. And no matter what, don't stop having fun with it. आप जहाँ जाओ, जिसके साथ रहो, जो पढ़ाई करो, क्या ही फर्क पड़ता है. मजे करते रहो, मस्ती करते रहो, बहुत ज़्यादा सीखो. And keep going forward into the world. And through this platform, I try to share as much knowledge as possible with all of you. And I would urge all of you to do the same. ज्ञान फ्री में बंटता है, मैं भी फ्री में बांट रही हूँ. आप जिसको मदद कर सकते हो उसकी मदद करो, जिसकी बातें सुन सकते हो, जिसे ज़रूरत है, for someone who needs somebody to listen, be that person, be the shoulder someone can have, be the friend someone can rely on. And also believe that you can have those people. You are not alone in this world. You can have people who you can rely on as well. Just the way through this platform I share knowledge with all of you regarding anything that I want to talk about. Please go into the world and help anyone who needs it. It's free. The world is a scary, scary place, but you are kind, and so is everyone else. And you don't know who needs that kindness, including yourself. So be kind to yourself and be kind to the people around you. और पढ़ते रहो और मस्ती करते रहो. And we will see each other in the next video. Bye bye.